Hello students, first and foremost we are very happy to receive tremendous appreciation and response in our Helix series NEET preparation in 30 days. It gives us immense satisfaction that we have been of help for your NEET preparation. I am Dr. Nupur Mathur, Zoology faculty from Helix Institute, and today I am going to start a topic, human reproduction, which is very important from the point of view of NEET preparation. We know that everyone has to die, no one is immortal, but millions of species are still present on the surface of earth, which have originated millions and millions years ago because of the property of all the organism to produce more of their own kind. This is reproduction. When we are talking about human reproduction and characteristic of human reproductive system, in human beings sexes are separate, means they are unisexual or bisexual. They are unisexual. Then they show sexual dimorphism, means we can differentiate between male and female externally. The stage of when primary sex organ become functional is called puberty. Age of puberty in female is approximately 9 to 11 years, while in male it is 14 years. 14 years is the age of sexual maturity in case of males. Then when we are talking about fertilization, in case of human beings fertilization is internal. Then embryo development is intrauterine. यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है. देन प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो. अब बच्चे ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आंसर इज प्लेसेंटा. लेकिन अगर आता है न्यूबॉर्न को, इन्फेंट को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड. दोनों क्वेश्चंस को हमने ध्यान से रीड करना है. देन human beings, human female give birth to the young one. Phenomenon is called vivipary. Females are viviparous, human beings are viviparous, they are not oviparous. And phenomenon of giving birth to the young one is known as parturition. Infants are fed on mother's milk released by mammary gland. Mammary gland are present in all the mammals without any exception. कहीं कोई एक्सेप्शन हमें नहीं मिलता जिस मैमल में हमें मेमरी ग्लैंड्स इसमें ना प्रेजेंट हों. दो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दे आर फंक्शनल इन फीमेल एंड नॉन फंक्शनल, नॉट डेवलप्ड इन केस ऑफ मेल्स. देन another question, that reproductive events, when we are talking about reproductive events, are similar in male and female or they are remarkably different. Answer is they are remarkably different in male and female. Reproductive events are remarkably different in male and female because females remain reproductive from menarche to menopause. Age of menarche again 9 to 11 years. Then age of menopause is approximately 50 years. तो जो females हैं they are reproductive from menarche to menopause only, while males they are reproductive throughout life. अब बच्चे अगर मेरा सेंटेंस है males are reproductive throughout life, my sentence is incomplete. This sentence is incomplete. मुझे कहना होगा males are reproductive
throughout life after puberty. ठीक है, प्यूबर्टी से पहले तो वो रिप्रोडक्टिव नहीं है ना, सो दे आर रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट लाइफ आफ्टर प्यूबर्ट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. In case of male reproductive system, we include testes, which are paired or unpaired. They are paired structure. Different sex glands, sex ducts, they are also included in it. So, when we are talking about external genitalia, that is also present in the case of male in the form of penis. So, they are the different part of male reproductive system. First part, when we are talking about testes, when we are talking about testes, testes in case of human beings, they are extra abdominal. Extra abdominal in scrotum. Scrotum is darkly pigmented structure hanging between the legs from abdomen. अब क्वेश्चन आता है कि why testes are extra abdominal? Rest of the male reproductive system is present in pelvic region, that is lower abdominal region, but they are present in pelvic region. So they can, but testes are present in scrotum because for spermatogenesis, 2 to 2.5 degrees Celsius less temperature is required, but less temperature than environmental temperature or body temperature? Less than body temperature. So, what is the temperature of scrotum? What is the temperature of scrotum? It is about 35 degrees Celsius, or we can say that 95 degrees Fahrenheit. तो मेल्स में सारे जो एंजाइम्स हैं they are showing optimum value at body temperature, but spermatogenesis के जो एंजाइम्स हैं they require less temperature. So scrotum में testes present होती हैं. When we are talking about covering of testes, in case of covering of testes, though it is having three coverings, tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica vasculosa, but following the NCERT, it is having a dense covering. It is having a dense covering tunica albuginea is present. Tunica albuginea is a dense covering made up of white collagenous tissue. Then tunica albuginea divide testes into different testicular lobules. यहाँ पर testicular lobules are present. Number of testicular lobule is about 250 in each testis. 250 testicular lobules are present in each testis, and inside the lobule, seminiferous tubules are present, which are highly coiled structure. 1 to 3 seminiferous tubules are present in each testicular lobule, and outside these seminiferous tubule, inside the testicular lobule, interstitium is present. Interstitium is present. Interstitium is filled with connective tissue, fluid, etc. So, when we are talking about testes, it is covered by a dense covering. Tunica albuginea is present. How many testicular lobule? 250 testicular lobules are present, and each testicular lobule is having 1 to 3 seminiferous tubule. If we cut
transverse section of seminiferous tubule. If we cut transverse section of seminiferous tubule, अब बचिए, this portion is outside seminiferous tubule. Outside seminiferous tubule, this is interstitium. Right, in interstitium, connective tissue is present, blood vessels are present, these are blood capillaries are present, plus these interstitial cells are present, which are also known as Leydig cells. Do you remember the function of Leydig cell? Under the influence of GnRH from hypothalamus, anterior pituitary release LH. Other name of LH is ICSH. LH stimulate Leydig cells to release androgen, which are steroid hormone, testosterone. Testosterone is secreted by Leydig cell. तो बच्चे, outside the seminiferous tubule, in interstitium, connective tissue is present, Leydig cells are present, blood capillaries are present, plus over here some immunological competent cells are also present. ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो ये तो सब हो गया बिटवीन द seminiferous tubule. Means all these structure are intertubular और intratubular, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स के बीच में हैं. Leydig cell, interstitial cells are intertubular, seminiferous tubules के बीच में प्रेजेंट हैं. अब बचे, जहाँ हम स्ट्रक्चर देखते हैं इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. इनसाइड द सेमिनिफेरस tubules are lined by germinal epithelium. It is having different developmental stages of germ cells: spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid and sperm or spermatozoa. In seminiferous tubule, some large size cells are present, which are called Sertoli cell. Sertoli cells are also present. They are providing support to germ cells, nourishment to germ cells. इसीलिए इनको नर्व सेल्स भी कहते हैं. ये जर्म सेल्स नहीं, इनको सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं. प्लस Sertoli cells are endocrine in function also. Endocrine in function. They secrete inhibin, which is inhibiting FSH secretion. अगर FSH का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो FSH is inhibited by inhibin. Plus it is also secreting ABP, androgen binding protein, that concentrate testosterone in testis. क्योंकि बच्चे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी तो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है ना, तो इसलिए हम ये कहते हैं दैट इट इज़ सिक्रीटिंग ABP ऑल्सो. देन इट इज़ ऑल्सो सिक्रीटिंग स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स. Spermiogenic factors which are responsible for spermiogenesis in sperms, right? तो ये सारे ये एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं. अब बच्चे, क्वेश्चन अगर आता है टेस्टिस सिक्रीट मेनली स्टीरॉयड हार्मोन, करेक्ट, क्योंकि ये तो ज़्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है. लेकिन अगर आता है टेस्टिस सिक्रीट ओनली स्टीरॉयड हार्मोन, देन आवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Testes secrete some polypeptides also. Inhibin, ABP etc. are
पेप्टाइड्स। तो अगर आता है सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन, इनकरेक्ट, बट अगर आता है मेनली स्टीरॉयड हार्मोन, देन इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. इनहिबिन एक्सेट्रा दे आर पेप्टाइड इन नेचर. अब बच्चे डायग्राम में देखो, ये जर्म सेल्स एक्सेट्रा दे आर पार्शियली एम्बेडेड इन सर्टोली सेल. स्पर्म्स आर ऑल्सो पार्शियली एम्बेडेड इन सर्टोली सेल. जब स्पर्म्स का मैचुरेशन हो जाता है, दे आर रिलीज्ड इन द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये यहाँ से रिलीज होके और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर चले जाते हैं. रिलीज ऑफ स्पर्म from seminiferous tubule is known as spermiation. ठीक है, so release of sperm from seminiferous tubule is spermiation. इतना पार्ट बचे, मेन पॉइंट्स हमें क्लियर हो गए. नाउ नेक्स्ट, when we are talking about this site of formation of sperms is seminiferous tubule. Seminiferous tubule, they form a straight tube like structure that is known as tubuli recti. Means sperms seminiferous tubule में बने, पास हुए straight tubes में tubuli recti में. Tubuli recti से they enter in a network of tubule that is known as rete testis. From rete testis they move into thin convoluted ciliated tubes known as vasa efferentia. Means sperm seminiferous tubule से गए tubuli recti, rete testis, vasa efferentia. ये तीनों मिलके they form intratesticular genital duct system. They form intratesticular genital duct system. तो यहाँ से स्पर्म्स का मूवमेंट हुआ वासा इफ्रेंशिया तक. वासा इफ्रेंशिया सीलिएटेड भी हैं, थिन वॉल भी हैं, एंड दे ओपन अप इनटू another structure known as epididymis. Epididymis is divisible into upper caput or head epididymis, middle corpus epididymis or body epididymis, lower cauda or tail epididymis. तीन में ये divisible है. And यहाँ देख के आप बताओ, that is highly convoluted structure, that is very long, highly convoluted structure, about 6 meter long, that is epididymis is present, and it is epididymis is a site of storage, nourishment and maturation of sperms. And another important feature is motility of sperm. जो सबसे important है motility of sperms, इसके लिए भी epididymis present है. Motility, the sperms which are released from seminiferous tubule, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स रिलीज होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल. जो स्पर्म्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, दे आर नॉन मोटाइल स्पर्म्स. तो मोटिलिटी जो आ जाती है, दैट इज इन एपिडाइडिमस. यहाँ तक का पार्ट हो गया. अब एपिडाइडिमस से, और एपिडाइडिमस इज प्रेजेंट ऑन posterior surface of testis, right? अब एपिडाइडिमस के बाद जो डक्ट अराइज करती है, दैट इज वास डिफरेंस. अब बच्चे जितने स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पढ़ाए,
they are found only and only in scrotum. Means seminiferous tubule, tubuli recti, epididymis, vasa efferentia, ये सिर्फ स्क्रॉटम में प्रेजेंट है. बट वास डिफरेंस, it is present in scrotum as well as it enters in abdomen. So when we are talking about next part, male reproductive system, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया. अब vas deferens, that is convoluted, in case of convoluted, यहाँ पर that is convoluted in scrotum, straight in abdomen, loops over urinary bladder and join with ducts of seminal vesicle. यहाँ से vas deferens join with ducts of seminal vesicle to form ejaculatory duct that opens up into urethra. Then secretion of seminal vesicle and sperms enter in urethra. Then another gland is prostate gland. ये दोनों seminal vesicle, ये prostate gland जो कि unpaired है, ये भी अपना secretion pour कर देती है urethra में. Then bulbourethral gland, paired gland, they also pour their secretion in urethra. So urethra में sperms, seminal vesicle, prostate gland, Copper's gland, सबके secretion आ गए. Then next structure is male copulatory organ, penis, and its tip of the penis is called glans penis, which is covered by a loose fold of skin that is known as foreskin or prepuce. बच्चे ये लेबलिंग ज़रूर ध्यान में रखती हैं. नीट में जो क्वेश्चन आया था, अब फोरस्किन और ग्लैंस पेनिस, ये बिल्कुल डिमार्केशन है. अगर यहाँ से आ रहा है तो फोरस्किन है, अंदर की तरफ लेबलिंग आ रही है, देन इट इज़ ग्लैंस पेनिस. इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है पेनिस में. अब बच्चे यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी कैरी कर रही है और सेमिनल फ्लूइड भी कैरी कर रही है. तो जो क्वेश्चन नीट वाला था, विच इज़ कॉमन शेयर्ड डक्ट फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आंसर इज यूरेथ्रा. दैट्स वाई यूरेथ्रा इज ऑल्सो नोन एज urinogenital duct that opens outside through urethral meatus. तो ये हमारे मेन पार्ट्स हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नेक्स्ट, और कुछ हमने जो नीट वाले क्वेश्चंस हैं वो भी साइड बाय साइड डिस्कस कर लिए. इसके बाद हमारा नेक्स्ट, जिस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस पे. ग्लैंड्स के सिक्रीशन में जो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. कॉपर्स ग्लैंड तो सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करें फॉर लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. बट जहाँ हम प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, 60% semen is produced by seminal vesicle, 20 to 30% by prostate gland, 5% by Copper's gland, and rest on the seminal fluid are sperms. इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म्स आर प्रेजेंट. फिर क्वेश्चन आता है दैट फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, fructose, then clotting proteins in the secretion of seminal vesicle, while fibrinolysins, calcium ion, clotting enzyme, they are present in prostate gland secretion. तो fructose in secretion of seminal vesicle, calcium in secretion of prostate gland. फ्रक्टोज के साथ एक और बच्चे इंपॉर्टेंट फीचर एसोसिएटेड है. फ्रक्टोज हमारी बॉडी के किसी भी और सिक्रीशन में नहीं होता. फीमेल के किसी बॉडी सिक्रीशन में फ्रक्टोज रिलीज नहीं होता, मेल में सिर्फ सेमिनल फ्लूइड में. तो अगर कोई मेडिको लीगल केस है फॉर रेप, इन केस ऑफ रेप टेस्ट, डॉक्टर यूज टू टेस्ट फ्रक्टोज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि फीमेल के किसी सिक्रीशन में फ्रक्टोज नहीं प्रेजेंट होता. ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आ गए. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम फिब्रिनोलाइसिस. व्हेन सेमिनल फ्लूइड इज रिलीज्ड,
First of all, it changes into coagulum so that it should not flow out of vagina. कोएगुलम में कन्वर्ट हुआ, फिर फिब्रिनोलाइसिन उसको धीरे धीरे डिज़ोल्व करते हैं, सो स्पर्म्स कैन रीच टू फैलोपियन ट्यूब. तो ये है बिकॉज सेमिनल फ्लूइड इज़ अ थिक सस्पेंशन. धीरे धीरे फिब्रिनोलाइसिस ने डिज़ोल्व किया और फिर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं. अब बच्चे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीमेन, seminal fluid and seminal plasma. Semen, seminal fluid, seminal plasma. But semen and seminal fluid one and the same thing. Seminal plasma is including secretion of these glands जिसमें sperms नहीं है. अगर seminal plasma के साथ sperms भी ऐड हो जाएं, then it is known as seminal fluid और semen. मीन्स सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स नहीं है, सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जबकि सीमेन में स्पर्म्स भी इंक्लूडेड होते हैं. ईच इजैकुलेट ऑफ 3 to 4 ml is having about 200 to 300 million sperms. Then out of these 200 to 300 million sperms means about 80 million per ml are present. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट समझ आ गया आप लोग को, राइट? अब बचे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. अभी बच्चे जब मैंने पीछे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वहाँ मैंने एनसीईआरटी फॉलो करके बोला था रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. नीट में क्वेश्चन आ गया इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बच्चे दोनों ही करेक्ट हैं. रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्टोली सेल से निकल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आना, एंड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो इनटू भी करेक्ट है, फ्रॉम भी करेक्ट है. एनसीईआरटी में मेंशन्ड है फ्रॉम. नीट का क्वेश्चन कहता है इनटू. दोनों ही करेक्ट हैं. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्पर्मियोजेनेसिस इज कन्वर्जन ऑफ spermatid into sperms. तो बच्चे हमारा इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. और आपने ध्यान रखना है इनटू एंड फ्रॉम दोनों ही करेक्ट हैं स्पर्मिएशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, for some reason if vasa efferentia is get blocked. अब बच्चे वासा efferentia ने स्पर्म्स टेस्टिस से कहाँ पहुँचाए थे? एपिडाइडिमस में. तो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडाइडिमस. वासा efferentia टेस्टिस और एपिडाइडिमस के बीच में. एपिडाइडिमस के बाद है वास डिफरेंस. तो ये इसका आंसर हो गया. थर्ड, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन. अभी बच्चे हमने पढ़ा था कैल्शियम आयन किसके सिक्रीशन में है? प्रोस्टेट ग्लैंड में. फ्रक्टोज इन सेमिनल वेसिकल. इट मीन्स कैल्शियम, एंजाइम, फिब्रिनोलाइसिस एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, इनकरेक्ट. एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स. ग्लूकोज नहीं है. Fructose and certain enzyme but poor in calcium? No, it is rich in calcium also. So fructose, calcium and certain enzymes. So this is the correct answer. So important question associated with male reproductive system we have discussed. Side by side भी हमने discuss किए और हमने question answers form में भी discuss कर लिए. Now next is which one of the following statement is false in respect to viability of mammalian sperm? Viability means they are able to fertilize or not. अब sperms must be concentrated in a thick suspension
Correct. Otherwise, they will flow outside the vagina. Sperms, survival of sperms depend on the pH of medium, and it should be alkaline, right? For sperm activation, alkaline medium is required. Viability of sperm is determined by its motility. That is also correct. We know that in each ejaculate, 60% sperm should have normal shape and size, and of these 40% should show vigorous motility. Means normal shape and size 60% और इन 60% के 40% they should show vigorous motility. अब ये रह गया sperm is viable for only up to 24 hours. ये statement incorrect है. More than for 24 hours, 48 hours, 72 hours तक भी sperms viable होते हैं. तो this is incorrect statement. Next, let's discuss about female reproductive system. Female reproductive system is also present in pelvic region along with mammary gland, which are thoracic. अब first part of that is female reproductive system is ovary. Ovary and testes are considered as primary sex organ. Why do we call them primary sex organ? Which are called as primary sex organs? Primary sex organ that produce gametes as well as hormones. इसलिए हम इनको primary sex organ कहते हैं. First of all, ovary, almond shaped, 2 to 4 centimeter, right? Almond shaped ovaries are present. Outermost layer is germinal epithelium. Then it is also having tunica albuginea. Means tunica albuginea is present in both male and female. And tunica albuginea give white color to ovary. Now from tunica albuginea inside part जो भी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है उस पार्ट को हम कहते हैं स्ट्रोमा, विच इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, एंड outer portion of stroma is called cortex, inner portion is called as medulla. Cortex outer portion, medulla is inner portion. Cortex and medulla. In cortex portion millions of, that is हम कहते हैं thousands of primordial follicles are present. In fetal life millions, a couple of million oogonia are produced. ठीक है, fetal life में ही जब हम डिस्कस करते हैं तो couple of million oogonia are produced. Fetal life में ही oogonia changes into oocyte. oogonia जो है fetal life में ही change हो जाते हैं oocyte में, ठीक है, और ये primary follicles बना लेते हैं. ठीक है, fetal life में millions of oogonia बने थे, उनका degeneration fetal life में ही शुरू हो गया. Degeneration of follicle is known as atresia. दिस इज़ नोन एज एट्रीजिया, जो कि फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है. फीटल लाइफ में एट्रीजिया शुरू हो गया. अब बच्चे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अबाउट 60,000 to 80,000 follicles are present in each ovary, which are primary follicle. अब ये फीटल लाइफ में ही प्राइमरी फॉलिकल बन गए. अब ये इसी स्टेज पे अरेस्ट हो गए फीटल लाइफ में ही. इसमें प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte is present which is arrested at diplotin of meiosis 1. डिप्लोटीन ऑफ meiosis 1 पे वो अरेस्ट हो गया और इसी स्टेज में फीटल लाइफ में प्रेजेंट है. अब फीटल लाइफ से ये प्यूबर्टी तक आ गए, अभी भी प्राइमरी प्राइमोड फॉलिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है. नाउ आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH डेवलपमेंट शुरू होता है.
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH प्यूबर्टी के बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ, प्राइमरी फॉलिकल चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। जो इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल थे वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होने शुरू हुए। इन सेकेंडरी फॉलिकल ऑल्सो प्राइमरी oocyte is present, but in primary follicle single layer of granulosa cell, while in secondary follicle many layer of granulosa cell and undifferentiated theca is present. थीका अभी स्पेशलाइज नहीं हुआ है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte। अब चेंज हुआ टर्शरी फॉलिकल में। जहाँ ये टर्शरी फॉलिकल में चेंज हुआ, इसमें थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना भी बन गई, कैविटी एंट्रम भी बन गई, और टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte changes into secondary oocyte। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ, meiosis 1 कंप्लीट हो गई, and this tertiary follicle change into mature Graafian follicle। mature Graafian follicle में भी secondary oocyte present है, which is arrested at metaphase 2 stage। arrested at metaphase 2 stage means पहले meiosis 1 शुरू हुई, अरेस्ट हो गई डिप्लोटीन पे, फिर इसी तरह से रहा, टर्शरी फॉलिकल में आके meiosis 1 कंप्लीट हुई, सेकेंडरी oocyte बना, meiosis 2 मेटाफेज 2 पे आके रुक गया। अब ये मेटाफेज 2 पे ही रहेगा, इसी स्टेज पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। मीन्स प्राइमरी oocyte इज प्रेजेंट इन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, वेरी बिगनिंग ऑफ टर्शरी फॉलिकल। बट इन टर्शरी एंड ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट। इस तरह से मैचुरेशन हुआ। अब बच्चे अगर क्वेश्चन आ जाता है आफ्टर प्यूबर्टी हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हाउ मच टाइम आफ्टर प्यूबर्टी, हाउ मच टाइम, जब प्राइमरी फॉलिकल का मैचुरेशन शुरू हुआ, एवरी मंथ 1 फॉलिकल मैच्योर टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। This is requiring 14 days। 14 days में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया, जिसमें सेकेंडरी oocyte है, एंट्रम भी प्रेजेंट है, थीका भी प्रेजेंट है। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन LH विच इज़ कंसिडर्ड एज ओव्यूलेटरी हार्मोन ऑल्सो। ओव्यूलेटरी हार्मोन हमने इसलिए क्यों कहा, बिकॉज इट इज़ स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेटरी हार्मोन ओव्यूलेशन हुआ एंड इट इज़ ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चे क्वेश्चन आता है ओव्यूलेशन और रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज इन फैलोपियन ट्यूब, इन कैविटी ऑफ ओवरी और इन सिलोम। बच्चे ओवरी में तो कैविटी है ही नहीं, बात ही खत्म। ओवरीज आर सॉलिड इंटरनली, ओवरीज में तो कैविटी है ही नहीं, तो वहाँ तो रिलीज हो ही नहीं सकता। फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज के जो बीच में डिस्टेंस है, इसके चारों तरफ यहाँ क्या प्रेजेंट है, सीलोम। सो सेकेंडरी oocyte is released in coelom immediately trapped by fallopian tube। और यहाँ ओव्यूलेशन जो है दैट इज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, मेटाफेज 2 स्टेज, और इसी पे ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तभी ओवम बनेगा, वरना ये इसी स्टेज पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब ये सारा पार्ट तो हमने कहा ग्राफियन फॉलिकल। किसी को याद है फॉलिकुलर सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं? थीका सेल एंड फॉलिकुलर सेल्स। थीका सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स रिलीज हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब ड्यू टू LH विच इज़ ओव्यूलेटरी हार्मोन, ओव्यूलेशन हुआ एंड अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज
कॉर्पस ल्यूटियम, येलो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है। लेकिन अगर कॉर्पस ल्यूटियम के रेफरेंस में आपका क्वेश्चन आता है तो आपका पहला आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन, ये बट एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा, शोइंग एक्टिव पीरियड ऑफ अबाउट 3 मंथ्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ये फिर से डीजेनरेट हो जाएगा। मीन्स द सेम स्ट्रक्चर इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, सेम इज कॉर्पस ल्यूटियम, उन्हीं में चेंजेस होते जा रहेंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा मेन फीचर्स एसोसिएटेड विद ओवरी। नाउ क्वेश्चंस, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, which of the following is a correct match with reference to A, B, C and D in the given diagram। अब गिवन डायग्राम में A, अब जिसमें एंट्रम है तो ये टर्शरी फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल ही होगा, एंट्रम प्रेजेंट है, ये टर्शरी फॉलिकल होगा। B मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नज़र आ रहा है, ये C हमें सेकेंडरी oocyte नज़र आ रहा है, एंड D इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। अब अगर स्टेटमेंट है A इज़ टर्शरी फॉलिकल, यहाँ तक तो ठीक है, सेकेंडरी oocyte स्टेज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन, टर्शरी फॉलिकल में तो चेंज हो गया, यहाँ इट इज़ अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, वहाँ पे हम कह सकते हैं मेटाफेज 2। लेकिन यहाँ पर डिप्लोटीन, प्राइमरी oocyte ही में डिप्लोटीन थी ना, सेकेंड है ग्राफियन फॉलिकल, B is Graafian follicle having secondary oocyte arrested at metaphase 2, this is correct। अगर हम C कह रहे हैं, ovum with outermost covering corona radiata glued by hyaluronidase। अब बच्चे cells are glued by hyaluronic acid, नॉट बाय हायलुरोनिडेज, हायलुरोनिक एसिड से ये ग्लूड होती हैं, तो इस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम इज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, करेक्ट, इतना तो करेक्ट है। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नो, इन नॉन प्रेग्नेंट 10 to 12 days इज द लाइफ स्पैन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है 2, नॉन प्रेग्नेंट में भी कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जिसका लाइफ स्पैन 10 to 12 days हम लेके चलतेंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमारा समझ आ गया। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस डायग्राम पे बहुत क्वेश्चंस नीट में आए हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन। एक तो जहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब फर्स्ट पार्ट ब्रॉड फनल शेप्ड इन फंडिबुलम, दिस इज वाइडर एम्पुला, दिस इज इस्थमस। अब बच्चे आप देखो, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब इस तरह से कनेक्टेड नहीं है कि ओवरी जो है फैलोपियन ट्यूब की कैविटी में है, देयर इज अ डिस्टेंस। तो सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इन सीलोम immediately trapped by fallopian tube by movement of fimbriae and cilia। अब फैलोपियन ट्यूब जब हम डिस्कस करते हैं, इन दिस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट विच इट दे आर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे अगर फैलोपियन ट्यूब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है तो विच इज द स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, दैट इज एम्पुला। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एम्पुला, लेकिन अगर एम्पुला नहीं है तो हम एम्पुला इस्थमिक जंक्शन लेंगे। तो एम्पुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्पुला इज ऑल्सो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और फिर आता है वाई ऑल कॉपुलेशंस आर नॉट लीडिंग टू प्रेगनेंसी। बच्चे अगर एम्पुला में सेकेंडरी oocyte और स्पर्म दोनों होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर सिर्फ स्पर्म है तो भी नहीं होगा, सिर्फ सेकेंडरी oocyte है तो भी नहीं होगा। तो विच इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब।
फिर आ जाता है यूट्रस. When we are talking about uterus, uterus is also known as womb, metra, hystera, metra, womb. सारी टर्म्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं. और तभी सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज hysterectomy. Hysterectomy is surgical removal of uterus. Upper dome shaped part, fundus, body, then this is cervix part, this is vagina part. ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं. अब बच्चे नीट में एक क्वेश्चन तो आ चुका है इन लेयर्स पे, ए बी सी करके आइडेंटिफाई करने के लिए, विच इज़ पेरीमीट्रियम, विच इज़ मायोमीट्रियम, विच इज़ एंडोमीट्रियम. ठीक है, आउटर मोस्ट कौन सी है? आउटर मोस्ट पेरीमीट्रियम, मिडल मायोमीट्रियम, इनर मोस्ट एंडोमीट्रियम. एक तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से आ जाता है. दूसरा क्वेश्चन है विच लेयर शो प्रोफाउंड चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल? ग्लैंडुलर वेस्क्युलर लेयर showing profound changes during menstrual cycle. The answer is एंडोमीट्रियम, जिसमें चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे. दूसरा क्वेश्चन आता है विच लेयर इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग पार्चुरेशन? पार्चुरेशन के लिए मसल्स चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन significant role is played by myometrium. तो बच्चे which is outermost layer? Perimetrium. Muscular layer myometrium. Myometrium में कौन सी मसल्स हैं? Striated, smooth और cardiac. It is having smooth muscles. ठीक है, which is showing profound changes during menstrual cycle. This is endometrium. राइट तो ये हमारे मेन स्ट्रक्चर्स आ गए. वेजाइना बर्थ कैनाल भी कहलाती है, कॉपुलेटरी कैनाल भी कहलाती है. कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल. सर्वाइकल कैनाल, कैविटी ऑफ वेजाइना, दे फॉर्म बर्थ कैनाल. राइट, डन. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन आ गया है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन केस ऑफ फीमेल, इट इंक्लूड्स, सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया, टू लिप लाइक फोल्ड्स आर प्रेजेंट, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा. अंदर वाला लेबिया माइनोरा, बाहर वाला लेबिया मेजोरा. Here urethral orifice and vaginal orifice are present. जहाँ पर लेबिया माइनोरा, जहाँ पर लेबिया, ये जो बाहर वाला है लेबिया मेजोरा है, अंदर वाला लेबिया माइनोरा, जहाँ पर ये आगे की तरफ फ्यूज़ कर रहा है, इस जगह प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस. क्लाइटोरिस, राइट. नाउ when we are talking about this here, upper cushion like structure which is having here, this is known as mons pubis. Mons pubis is cushion of fatty tissue covered by skin and hair. Outer labia majora, inner labia minora, finger like structure at the junction of lips of labia minora are clitoris. Then at anterior urethral orifice, posterior vaginal orifice. Vaginal orifice is covered by hymen. Hymen is a membrane which partially covers the opening of vagina. अब बचे important question, कई बार आता है hymen is considered as sign of virginity. Hymen is sign of virginity. No, it is not the sign of virginity. Why we are saying that it is not the sign of virginity? Because hymen can be ruptured due to any sports etc., some insertion of vaginal tampons etc., and sometimes they can persist after copulation also. So it is not the sign of virginity.
राइट। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलेटेड अब जो नीट का क्वेश्चन है मैच वाला, मॉन्स प्यूबिस हमने पढ़ा है, मॉन्स प्यूबिस अ फैटी कुशन कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस हमने क्या पढ़ा था, सेंसरी स्ट्रक्चर है, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देन लेबिया मेजोरा, जहाँ पे हमने कहा अ थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग विजाइनल ओपनिंग, दैट इज hymen. Then when we are talking about a fleshy fold of tissue surrounding the vaginal opening, that is labia majora. So now this is the matching that we have already done. Is hymen sign of virginity? No, it is not sign of virginity. हम hymen को sign of virginity नहीं consider करते. अब आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स थोरेसिक, कन्वेक्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पर these are muscles, ये वाली हैं ribs, these are ribs, and these between the ribs we know that intercostal muscles are present. Here pectoralis major muscles are present. Then these mammary glands are present. अब बच्चे अगर क्वेश्चन आता है pectoralis major muscles, intercostal muscles, are they part of mammary gland? No. These ribs, intercostal muscles, pectoralis major muscles, हमने यहाँ इनकी लोकेशन बताई है मेमरी ग्लैंड की, they are not the part of mammary gland. Part of mammary gland, this is the structure, this is mammary gland, tip is nipple, pigmented structure areola, it is having large amount of fat material and glandular tissue. ठीक है, ये सारा पिंक पिंक जो ड्रॉ किया, this is glandular tissue. Each mammary gland is divisible into about 15 to 20 mammary lobes. यहाँ पे 15 to 20 mammary lobes हैं. Mammary lobes में mammary alveoli are present. Mammary alveoli, which are site of synthesis of milk, site of storage of milk, which is milk synthesizing hormone, milk synthesis by prolactin. यहाँ पर एल्वियोलाई में मिल्क सिंथेसाइज हुआ और स्टोर हुआ. अब एल्वियोलाई से मिल्क गया मेमरी ट्यूब्यूल्स में. यहाँ पर एल्वियोलाई में बना, एल्वियोलाई से मिल्क जो है वो ड्रेन हुआ मेमरी ट्यूब्यूल्स में. मेमरी ट्यूब्यूल से मिल्क जो फ्लो किया, दैट इज इन मेमरी डक्ट. थर्ड पार्ट आर मेमरी डक्ट. एल्वियोलाई में सिंथेसाइज हुआ, वहाँ से फ्लो किया मेमरी ट्यूब्यूल में, मेमरी ट्यूब्यूल से फ्लो किया मेमरी डक्ट में. मेमरी डक्ट डायलेट टू फॉर्म एम्पुला, and from ampulla that it drains into lactiferous duct which opens at nipple and from where milk is sucked out. तो जब हम मिल्क फ्लो की बात करते हैं, जो नीट में फिर क्वेश्चन था, हमें फ्लो के लिए लर्न करना है एट डल. डल लेक तो याद रहेगी, एट डल हम याद रखते हैं. सबसे पहले एल्वियोलाई, फिर टिब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट. अगर फ्लो ऑफ मिल्क पे क्वेश्चन आ रहा है, हमने एट डल से याद कर लिया, राइट. डल लेक तो हमें याद ही रहती है, तो एट डल यहाँ पे हमने डिस्कस किया. अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, वही जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मेमरी ग्लैंड, दैट इज रूट ऑफ मिल्क इजेक्शन. मिल्क इजेक्शन हमने फिर वही एट डल वाला ले लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल alveolus, tubule, duct, then ampulla and lactiferous duct. At
डल। सबसे पहले सी, फिर ई, फिर हमारा क्या आएगा, सी और ई के बाद हमारा फिर आ जाता है डक्ट, फिर आया डी हमारा, दैट इज एम्पुला, एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट। हमने एट डल से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि हमारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, करेक्ट chronological sequence of source of synthesis of hormone directly on mammary glands for its development and lactation। अब बच्चे, मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ शुरू होती है प्यूबर्टी पे। सबसे पहले हार्मोन एस्ट्रोजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे या एल्वियोलाई फॉर्मेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन इज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल। Then milk synthesis by prolactin, and then milk ejection by oxytocin, right? ये 4 हार्मोन हैं। अब हमें पता है ये दोनों हार्मोन हमने कहाँ से डिस्कस किए, ओवरी से। प्रोलैक्टिन इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, oxytocin is synthesized in hypothalamus, released by posterior pituitary। अब बच्चे, इन्होंने क्वेश्चन में रिलीज नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के अकॉर्डिंग पहला ओवरी, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर हाइपोथैलेमस। दिस इज द आंसर, ठीक है। सिंथेसिस के लिए हमने लिया, सबसे पहले ओवरी में सिंथेसाइज हुए, फिर प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन साइट ऑफ सिंथेसिस इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, दोनों में होता है। इट इज़ अकरिंग इन फीमेल्स आफ्टर प्यूबर्टी, फ्रॉम मेनार्क टू मेनोपॉज साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस, और ईच साइकिल इज ऑफ 28 to 29 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे मैमल्स में होता है? नहीं बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन बींग्स, एप्स एंड सर्टेन स्पीशीज ऑफ मंकीज़ में होता है, सभी मैमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके असाइनमेंट्स में भी, बुक्स में भी और नीट प्रिपरेशन में भी। अब जहाँ हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस देखते हैं, 4 फेजेस। फर्स्ट फेज इज menstruation phase, menstruation or menstrual phase. Second phase is follicular phase. Third phase is ovulatory phase. And fourth phase is luteal phase. There are 4 phases of menstrual cycle. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आता है कि चेंजेस सिर्फ ओवरीज में हैं या सिर्फ यूट्रस में या सिर्फ फैलोपियन ट्यूब्स में, हम इन जनरल कहते हैं चेंजेस टेक्स प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ओवरीज में भी चेंजेस हैं, यूट्रस में भी चेंजेस हैं, डिफरेंट पार्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में FSH का लेवल कम है, LH का भी कम है, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो FSH का कम है कि ज़्यादा है बच्चे? FSH का ज़्यादा है, LH का कम है। फिर ओवरीज में फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, एस्ट्रोजन भी कम, प्रोजेस्टेरॉन भी कम, यूटराइन एंडोमेट्रियम रप्चर हो रही है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, रप्चर्ड एंडोमेट्रियम, ब्लड, म्यूकस एक्सेट्रा रिलीज हो रहा है। ये तो हो गई मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 to डे 5।
day 1 to day 5 is menstrual phase. अब menstrual phase के बाद हुई follicular phase. follicular phase में जहाँ हम डिस्कस करते हैं, follicular phase में LH भी इंक्रीज़ हुआ, FSH भी इंक्रीज़ हुआ, लेकिन FSH सिर्फ 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ, LH 8 to 10 टाइम्स, मीन्स LH ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हुआ. उसके बाद ओवरीज में फॉलिकल मैच्योर हुए, वही जो हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर, ग्राफियन फॉलिकल हो गया. इन फॉलिकुलर सेल्स ने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया तो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन अभी कम ही है. जो मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम रप्चर हुई थी वो रीजेनरेट होनी शुरू हो, प्रोलिफरेट होनी शुरू हो गई. तभी फॉलिक्यूलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद है तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल, ओव्यूलेशन से पहले है तो प्री ओव्यूलेटरी फेज भी इसको कहते हैं. ये सारे चेंजेस आ गए हमारे फॉलिकुलर फेज में. LH का लेवल हाई है ऑन 14 डे ऑफ द साइकिल, जिसको हम कहते हैं LH सर्ज, राइट. अब बचे ड्यू टू LH सर्ज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस. हमने पहले भी डिस्कस किया था, LH इज ओव्यूलेटरी हार्मोन, ये ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है, ओव्यूलेटरी हार्मोन है. अब यहाँ पर 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके मिडल में हमने कहा दैट इज ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू LH सर्ज. ओव्यूलेशन के टाइम पे भी LH मोर, FSH मोर, एस्ट्रोजन मोर, बट प्रोजेस्ट्रॉन इज लेस. यहाँ पर ओव्यूलेशन हो गया. अब ओव्यूलेशन के बाद हमने पढ़ा रप्चर्ड फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, फिर एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर रहा है. इस टाइम पे FSH LH लो होने शुरू हो जाते हैं. प्रोजेस्ट्रॉन पहले बढ़ेगा, फिर एस्ट्रोजन, और यूटेराइन एंडोमेट्रियम और थिक होती चली गई, जिससे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आराम से इसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है इम्प्लांटेशन के लिए. यहाँ पर फीटस का इम्प्लांटेशन हो जाए. बच्चे फटाफट फिर रिवाइज करते हैं. इन मेंस्ट्रुअल फेज FSH लेस, LH लेस, एस्ट्रोजन लेस, प्रोजेस्ट्रॉन लेस, सब कम है. फॉलिकुलर फेज में FSH मोर, LH मोर, एस्ट्रोजन मोर, प्रोजेस्ट्रॉन लेस. सेम विद ओव्यूलेटरी फेज, मोर LH, मोर FSH, मोर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन लेस. लेकिन जहाँ हम ल्यूटियल फेज जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी ल्यूटियल फेज को प्रोजेस्टेशनल फेज भी कहते हैं, सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं. इसमें प्रोजेस्ट्रॉन हाई है, एस्ट्रोजन भी हाई हो जाता है, बट FSH LH आर लो. इससे रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ, अगर आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल करेक्ट, लेकिन वहाँ लिखा होता है इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज. अब मेंस्ट्रुअल फेज से हमारा गलत हो गया, तो ध्यान से हमने क्वेश्चन पढ़ना है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं या मेंस्ट्रुअल फेज बोल रहे हैं. नेक्स्ट फिर हमारे आगे क्वेश्चन, इन प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड रीजेनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, नो. यहाँ पर रीजेनरेशन किसका हुआ था? एंडोमेट्रियम का, ना कि मायोमेट्रियम का. ये हमारा गलत हो गया. डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, सिक्रीटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ये पॉइंट हमारा ठीक हो गया. ल्यूटियल फेज में सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, नो. ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम. ओव्यूलेशन, LH एंड FSH अटेन पीक लेवल, ये तो ठीक है. एंड शार्प फॉल इन सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, बट ये फॉल थोड़ी हुआ, उससे पहले प्रोजेस्ट्रॉन था ही नहीं,
तो ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर हमारा सेकंड बन गया इसमें। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन आ गया मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। अब इसमें 1 2 3 है। अब इसमें हमें हार्मोन आइडेंटिफाई करना है। अब बच्चे जो इंक्रीज लेवल देख रहे हैं, हमने देखा था ओव्यूलेशन के टाइम पे FSH भी इंक्रीज़ कर रहा है, LH भी, लेकिन FSH कम इंक्रीज़ करता है, LH ज़्यादा। तो पहला तो ये हो गया, ये वाला होगा FSH, थर्ड वाला होगा LH। ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रॉन जो इस फेज़ में कम है, सिर्फ इंक्रीज़ हो रहा है ल्यूटियल फेज़ में, तो ये वाला हो गया प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। अब बच्चे डाउट आता है ये वाला, ये है एस्ट्रोजन। अब क्वेश्चन आता है कि भी हाई लेवल तो एस्ट्रोजन का भी है, FSH का भी है ओव्यूलेशन के टाइम पे, लेकिन सेकेंड विल बी एस्ट्रोजन बिकॉज इट इज़ शोइंग 2 टाइम्स इंक्रीज, जबकि FSH का इंक्रीज एक ही बार होता है। तो इन दिस केस दिस इज एस्ट्रोजन। So first is FSH, second estrogen, third is LH, fourth is progesterone. FSH, estrogen, LH, progesterone. This is our answer. तो menstrual cycle बचे important feature, ये सारे points समझ आ गए। फिर जैसे मैंने आपसे कहा था menstrual cycle सारे mammals में नहीं होता। In non-primate that is they are showing estrous cycle, means अगर काउ बफलो एक्सेट्रा पे क्वेश्चन आता है तो काउ बफलोज आर मैमल बट उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, उनमें क्या होता है एस्ट्रस साइकिल। तो ये वाला स्टेटमेंट इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, करेक्ट। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनोपॉज, नो, it is called as menarche. Then lack of menstruation may be indicative of pregnancy, correct. अगर menstruation नहीं है, क्योंकि pregnancy के केस में corpus luteum persist करता है, और अगर menstruation नहीं हो रहा है, wall जो है endometrium rupture नहीं हो रही है, this statement is correct. Cyclic menstruation extend from menarche to menopause, correct. तो बच्चे हमारा A, C and D they are correct. A, C and D are correct. Next, what is the effect of menopause on the level of FSH and LH? बच्चे menopause तब आता है जब ओवरीज में फॉलिकल्स नहीं हैं। अगर फॉलिकल्स हैं ही नहीं तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, इनका सिक्रीशन कम हो जाएगा। और वी नो दैट डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन गिव मैसेज फॉर फीडबैक देते हैं फॉर इंक्रीज्ड FSH एंड LH। अब मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हुए, FSH LH आर इंक्रीज। तो आफ्टर द मेनोपॉज लेवल ऑफ FSH एंड LH इज इंक्रीज, एस्ट्रोजन इज डिक्रीज, क्योंकि फीडबैक ही नहीं गया। और उस टाइम पे ये जो हार्मोन्स हैं FSH यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फॉलिकल्स तो ओवरी में है नहीं जो कि मैच्योर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मोस्ट कॉज ऑफ द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीन्स फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, वरना तो साइक्लिक चेंजेस होते रहेंगे। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड है, एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेगी, थिक 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 होती चली जाएगी। इसलिए लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, when we are talking about reproductive events in human beings, they include first of all formation of gametes, which is known as gametogenesis, formation of sperm in male and ovum in female. Next is transfer of sperm into female genital tract, that is known as insemination. हमने अभी पहले ही पढ़ा है, at the time of insemination 200 to 300 million sperms are introduced, right?
but large number of these are engulfed by vaginal epithelium and large number get killed by acidity of vagina, right. Then next is fertilization. Fertilization is fusion of male and female gametes, formation of zygote. Now next step is cleavage. But what is cleavage? Cleavage is mitotic division or meiotic division? Cleavage is rapid mitotic division. Rapid mitotic division. In rapid mitotic division, growth phase is not there. मीन्स जैसे हम सेल डिवीज़न से पहले इंटरफेस डिस्कस करते हैं उसमें हम ग्रोथ फेज डिस्कस करते हैं. ग्रोथ फेज तो इसमें नहीं होती, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं है, लेकिन बच्चे क्या एस फेज होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा या नहीं? बेटे वो तो हो गई, वरना क्रोमोसोम नंबर कम होता जाएगा हर एक सेल में. तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा बट ग्रोथ नहीं होगी. ये कहलाते हैं क्लीवेज डिवीजन्स. फिर आया फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. क्लीवेज डिवीज़न से जाइगोट में ब्लास्टोमेयर बने, मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है. ब्लास्टुला पहुंच जाता है यूट्रस तक. यूट्राइन वॉल से attachment of blastula to the wall of uterus is known as implantation. Takes place 7th day after fertilization. 7th day after fertilization implantation takes place. अब ब्लास्टुला में implantation हुआ, gastrulation बना हुआ, 3 germ layers are formed. 3 germ layers are formed. First germ layer formed is endoderm. First germ layer formed endoderm, then ectoderm, and then mesoderm is formed. In gastrulation, 3 germ layer formation takes place. First germ layer formed is endoderm. तो ये जर्म लेयर का फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन का है. इन जर्म लेयर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं. जैसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, नर्वस सिस्टम मेनली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. इन जर्म लेयर से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने. फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, ऑर्गेनोजेनेसिस हुई, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हुआ, और लास्ट में आफ्टर 280 डेज और 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड बेबी इज़ डिलीवर्ड और बॉर्न. तो ये डिफरेंट इवेंट्स आ जाते हैं. क्लीवेज डिवीज़न आर रैपिड और स्लो? दे आर रैपिड. माइटोटिक डिवीज़न और मियोटिक डिवीज़न? दे आर माइटोटिक डिवीज़न. नेक्स्ट जहाँ पे आ गया गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में oogenesis. मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी प्यूबर्टी पे. वो स्टार्ट ही प्यूबर्टी पे होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस. स्टार्ट ही प्यूबर्टी पे हुई और एक साइकिल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के फॉर्मेशन में अप्रॉक्सीमेटली 63 डेज लग जाते हैं. 2 months 63 डेज. लेकिन एक बार साइकिल शुरू हुआ कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है ये वाला साइकिल, राइट. स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से डिवाइड किए, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते रहे. कुछ स्पर्मेटोगोनिया का काम है सिर्फ डिवाइड करके और स्पर्मेटोगोनिया बनाना, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया एंटर कर जाते हैं ग्रोथ फेज में और बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब बच्चे ये वाली फेज जो है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज, क्योंकि इसमें जर्म सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रही हैं. अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में इंक्रीज हुए, इस फेज को हमने कहा ग्रोथ फेज, क्योंकि साइज इसमें इंक्रीज हो रहा है, ग्रो कर रहा है. अब थर्ड फेज आ गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जहां मियोसिस शुरू हुई. थर्ड फेज इज नोन एज
मैच्योरेशन फेज। पहली मल्टीप्लिकेटिव, देन ग्रोथ, देन मैच्योरेशन फेज इज देयर। अब मैच्योरेशन फेज में पहले फर्स्ट मियोसिस हुई, देन इट विल फॉर्म 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस 2 हुई, इट विल फॉर्म 4 स्पर्मेटिड। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स का बनना हुआ। अब बच्चे स्पर्मेटिड से स्पर्म का जो फॉर्मेशन है उस समय कोई डिवीज़न नहीं है। यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइजेशन और डिफ्रेंशिएशन, और इसी प्रोसेस को हमने पीछे क्या पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस। और किसी को याद है स्पर्मियोजेनिक फैक्टर किसने रिलीज किए थे, लीडिक सेल ने कि सर्टोली सेल ने? स्पर्मियोजेनिक फैक्टर रिलीज करती हैं सर्टोली सेल, और ये स्पेशलाइजेशन हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ, स्पर्म्स बन गए। अब ये वाले प्यूबर्टी पे एक बार जो शुरू हुए, ये साइकिल बराबर चलता रहता है, थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, और स्पर्म्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए मेन स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बच्चे क्वेश्चन जहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और कंटेंट ऑफ डीएनए पे। अब अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, क्रोमोसोम नंबर पर सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ भी 2n है, दैट इज 46। अब 46 क्रोमोसोम स्पर्मेटोगोनिया में 46 के 46 सिंगल स्ट्रैंडेड हैं, थ्रेड लाइक हैं, मोनैड स्टेज पर ही प्रेजेंट हैं, राइट, ये वाले। अब जब ये ग्रोथ फेज में एंटर किए, मीन्स इसमें वही डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, मोनैड से डायड में आए। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर तो हमने इनका वही रखा, 2n ही रखा, लेकिन अब ये मोनैड से डायड स्टेज पे आ गए। मोनैड से डायड स्टेज पे इनका आ गया, लेकिन नंबर वही है इनका। अब जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, अब इसमें जो पहले 2 मोनैड स्टेज पे थे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने पढ़ा था 2n, दैट इज़ 46। यहाँ पर अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट भी 2c ही है, लेकिन जहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये मोनैड से डायड हो गए, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कंटेंट हो गया 4c। नंबर तो 2n ही रहा, लेकिन कंटेंट क्या हो गया प्राइमरी ओसाइट में, 4c। यहाँ नंबर अगर 2n था तो कंटेंट भी 2c था, लेकिन ये तो मोनैड थे, ये डायड। अब बच्चे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गए, जहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये चेंज हुए, तो इसमें क्या हुआ, एक स्पर्म एक इसमें चला गया, एक क्रोमोसोम इसमें चला गया। अब क्या हुआ, नंबर तो 23 हो गया, n हो गया, लेकिन अभी भी कंटेंट तो इसमें 2c ही है, क्योंकि यहाँ 4c हो चुका था। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड टू हाफ इन केस ऑफ मियोसिस 1, लेकिन कंटेंट जो 2c ओरिजिनल था अभी भी 2c है। अब जब मियोसिस 2 होती है, जब स्पर्मेटिड का बनना शुरू होता है, अब इन केस ऑफ स्पर्मेटिड, जहाँ स्पर्मेटिड हैं, अब ये फिर से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कहेंगे नंबर भी इनका n आ गया और कंटेंट भी इनका c आ गया। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ, कंटेंट इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ आफ्टर मियोसिस 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है। Number of chromosome in secondary spermatocyte, spermatid and sperms is n. Content meiosis 2 के बाद हाफ हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कंटेंट इज 4c। अब आ जाता है oogenesis। oogenesis स्टार्ट इन फीटल लाइफ, 3 month ओल्ड फीटस में ये शुरू हो जाती है oogenesis। oogenesis शुरू हुई, वही मल्टीप्लिकेटिव फेज, बहुत सारे oogonia बन गए।
अब फीटल लाइफ में ही ये ग्रोथ फेज में भी एंटर कर गए. oogonia चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte में चेंज हुए और दे आर अरेस्टेड. प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, लेकिन ये अरेस्ट किस स्टेज पर है? डिप्लोटीन स्टेज पर. डिप्लोटीन पर ऑफ प्रोफेज 1 अरेस्टेड है. इसी स्टेज पर बर्थ पे आए और चाइल्डहुड में. प्यूबर्टी के बाद फर्दर डेवलपमेंट फिर शुरू हुआ. जब फर्दर डेवलपमेंट शुरू हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, एक सेकेंडरी oocyte, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बना. ये सेकेंडरी oocyte भी अरेस्टेड रहा मेटाफेज 2 पे. मेटाफेज 2 पे आके ये फिर से रुक गया और मेटाफेज पे ये सेकेंडरी oocyte इसी स्टेज पर ओव्यूलेशन में हुआ. अब जब स्पर्म इसमें एंटर करेगा, जब तक इसमें स्पर्म एंटर नहीं करेगा ये मेटाफेज 2 पे ही रुका रहेगा. और नहीं स्पर्म एंटर किया, ऐसे ही डिजेनरेट हो गया. एंट्री ऑफ स्पर्म रीस्टार्ट द साइकिल एंड वन ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड. तो अब बचे, at the end of oogenesis, 1 ovum, 2 or 3 polar bodies are released, but at the end of spermatogenesis 4 sperms are produced. अब बचे, यहाँ अगर हम देखते हैं, फिर हमने वही देखा, oogonia में नंबर जो है वो 46 है, 2n है. ठीक है, oogonia में, लेकिन कंटेंट भी इसमें इस समय क्या है? 2c ही. जहाँ प्राइमरी oocyte की बात कर रहे हैं, अब ये ग्रोथ फेज में एंटर कर गया, कंटेंट हो गया 4c. हाँ, नंबर इसमें भी 2n ही रहा. अब आया सेकेंडरी oocyte. सेकेंडरी oocyte में नंबर तो n हो गया, लेकिन कंटेंट अभी भी इसमें 2c है और नंबर n, कंटेंट c कहीं जाके होता है ओवम में. तो बच्चे, अगर स्टेटमेंट आता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड कंटेंट ऑफ डीएनए दे आर सेम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. फर्स्ट पोलर बॉडी का नंबर और कंटेंट सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जैसा होगा, लेकिन सेकेंड पोलर बॉडी का ओवम, स्पर्मेटेड और स्पर्म जैसा होगा. तो कंटेंट ऑफ डीएनए इज डिफरेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड पोलर बॉडी. तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं. स्पर्मेटोगोनिया oogonia का सेम, प्राइमरी oocyte प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सेम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का सेम, स्पर्म स्पर्मेटेड सेकेंड पोलर बॉडी एंड ओवम का सेम आएगा. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड कंटेंट ऑफ डीएनए पे. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड oocyte. स्पर्म में डिफरेंशिएशन होता है. स्पर्म में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, स्पर्म में पहला पार्ट हेड, हेड का फर्स्ट पार्ट एक्रोसोम, दूसरा पार्ट न्यूक्लियस. एक्रोसोम इज हैविंग स्पर्म लाइसेंस. किसी को याद है स्पर्म लाइसेंस कौन से हैं? स्पर्म लाइसेंस आर हाइल्यूरोनिडेज, जोना लाइसेंस और एक्रोसिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स. ठीक है, ये सब एक्रोसोम में प्रेजेंट है. हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं. किसी को याद है अगर हाइड्रोलेजेस हैं, एंजाइम कमीशन नंबर, इसी नंबर क्लास, दैट इज क्लास 3 एंजाइम, थर्ड क्लास एंजाइम है. हेड में न्यूक्लियस इज हैविंग डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन्स आर
एसिडिक प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन, नीट का क्वेश्चन है, लिस्ट दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो फर्स्ट पार्ट हुआ हेड, सेकेंड पार्ट नेक which is having proximal and distal centriole. Proximal centriole is contributed for cleavage and distal centriole give rise to axial filament. Third part middle piece having many mitochondria energy source. So middle piece is powerhouse. Powerhouse of sperm is middle piece, and tail which is having flagella. Okay, what is the arrangement of centriole in this case? Flagella में 9+2, arrangement of microtubule 9+2, while in case of centriole जो कि neck में present है, arrangement of microtubule is 9+0, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन स्पर्म में हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में, ओवा में इस तरह का कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। हाँ, इसमें जैसे हम कहते हैं यहाँ पर इस मेम्ब्रेन है, oocyte की मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है विच इज़ द नॉन सेल्यूलर लेयर, जोना पेलुसिडा नॉन सेल्यूलर, सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा। यहाँ पर पहले सेल मेम्ब्रेन, फिर जोना पेलुसिडा और मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर कोरोना रेडिएटा ऑफ फॉलिकुलर सेल्स विच आर ग्लोड बाय हाइलुरोनिक एसिड। जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो पहले हाइलुरोनिडेज इसको डाइजेस्ट करता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर कहीं जाके जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए जोना लाइसेंस काम करते हैं। हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना लाइसेन एक्रोसोम फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। अब आ गया हमारा नीट का क्वेश्चन, Which of the following statement for spermatogenesis are true but do not for oogenesis? मीन्स इसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अब है रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट। बच्चे हेप्लॉइड गैमीट तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी बन रहे हैं, oogenesis में। यहाँ ये पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है, oogenesis के लिए ट्रू नहीं है, तो हमारा ये वाला तो आंसर बन नहीं सकता। दूसरा आया डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमीट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफ्रेंसिएशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, ये करेक्ट हो गया। मियोसिस अकर कॉन्टिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल, राइट। स्पर्मेटोजेनेसिस में माइटोसिस थ्रू आउट लाइफ होती है, oogenesis में नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। जितने भी oogonia फीमेल को प्रोड्यूस करने होते हैं वो सब फीटल लाइफ में प्रोड्यूस हो गए, नो मोर oogonia कैन बी एडेड आफ्टर बर्थ, तो ये वाला पॉइंट भी ठीक हो गया। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। FSH LH तो दोनों में ही रोल प्ले कर रहे हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। FSH मैच्योरेशन के लिए, LH एक्सेट्रा दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन दोनों में प्ले कर रहे हैं। नाउ इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी वाइल oogenesis इन फीटल लाइफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, B, C एंड E। तो विच इज़ B, C एंड E आंसर, दिस इज द आंसर। ये भी नीट 2022 का क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको ऐसे कंपैरिजन कहीं भी NCERT में नहीं मिलेगा, दिस इज़ अप्लाइड पार्ट ऑफ NCERT। आप ये भी नहीं कहोगे दिस इज़ आउट ऑफ NCERT, बट दिस इज़ अप्लाइड पार्ट। तो आपने हर तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, द रिडक्टिव डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन इज meiosis. The reductive division for human female gametogenesis start earlier than that of male gametogenesis. Yes,
फीमेल में oogenesis फीटल लाइफ में ही शुरू हो गई. The gap between first meiotic division and second meiotic division is much shorter in males as compared to female. Yes, female में तो अरेस्ट ही हो जाती है, प्यूबर्टी के बाद ही शुरू होती है. Then the first polar body is associated with the formation of primary oocyte. No, primary oocyte तो growth से develop हुआ है, secondary oocyte के साथ first polar body बनती है. This is wrong. LH surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual cycle. No, LH surge की वजह से ovulation होता है, उसके बाद तो luteal phase आती है. तो this is also incorrect. तो correct answer हमारा क्या हुआ? A and B are true. Next, अब आ जाता है development etc. अब at the time of insemination millions of sperms are released, but काफ़ी millions जो हैं they are engulfed by vaginal epithelium and killed by acidity. Still few hundred sperms enter in uterus and reach to the fallopian tube for fertilization. Preparation of sperm for fertilization is called capacitation. And बच्चे, where capacitation takes place? It takes place in female reproductive tract. Female reproductive tract में sperm is prepared for fertilization, activate किया जाता है. यहाँ पर कैपेसिटेटेड स्पर्म एंटर किए यूट्रस में, यूट्रस से मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुँच गए. फैलोपियन ट्यूब में अगर एम्पुला वाले रीजन में सेकेंडरी oocyte भी प्रेजेंट है, इस समय स्पर्म्स भी पहुँच गए, तो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन से बन गया जाइगोट, क्योंकि जहाँ पहले ये सेकेंडरी oocyte है, एंट्री ऑफ स्पर्म, रीस्टार्ट द साइकिल, मियोसिस टू कंप्लीट हुई, ओवम बना और फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद होगा. जब अगर स्पर्म एंटर नहीं करा है सेकेंडरी oocyte में, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म. और फिर क्वेश्चन आता है एट व्हाट स्टेज सेक्स ऑफ फीटस इज डिसाइडेड. सेक्स ऑफ फीटस इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज, because we know that female is homogametic, males are heterogametic. अब जो स्पर्म जिसने फर्टिलाइज किया है उसमें अगर Y क्रोमोसोम होगा बॉय, X क्रोमोसोम होगा गर्ल, सेक्स ऑफ फीटस यहीं पे डिसाइड हो गया कि किस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया. तो व्हाट टाइम इज द सेक्स ऑफ फीटस इज डिसाइडेड, दैट इज फर्टिलाइजेशन, राइट. अब बच्चे, ये जो फर्टिलाइज जाइगोट हुआ इसमें क्लीवेज डिवीज़न हुए, 2 celled stage, 4 celled stage, 8 to 16 celled stage. All these are cleavage division. Mitotic division है, fractionating process है, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है. तो मीन्स सेल का साइज स्मॉल स्मॉल होता चला गया. डीएनए कंटेंट ज़रूर बढ़ा, लेकिन सेल का साइज से जो है डिक्रीज हुआ. साइज ऑफ जाइगोट, साइज ऑफ मॉरुला इज सेम. फर्स्ट डिवीज़न से 2 सेल्ड, सेकेंड डिवीज़न से 4 सेल्ड, थर्ड डिवीज़न से 8 सेल्ड, फोर्थ डिवीज़न से 16 सेल्ड मॉरुला इज फॉर्म्ड. ठीक है. अब ये जो मॉरुला का फॉर्मेशन है ये कहाँ है? दैट इज़ इन फैलोपियन ट्यूब, दैट इज़ इन ओविडक्ट. और अभी भी ये जोना पेलुसिडा से सराउंडेड है, अभी भी जोना से सराउंडेड है. साइज मॉरुला का इंक्रीज नहीं हुआ. अब ये मॉरुला पहुंच गया यूट्रस में. जब ये यूट्रस में हुआ, इसने यूटेराइन फ्लूइड एब्जॉर्ब किया, एक
कैविटी बन गई, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, सेगमेंटेशन कैविटी एक्सेट्रा। जब तक कैविटी नहीं है मोरुला, जहाँ कैविटी बन गई अब इट इज़ ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला में कैविटी नहीं है, मोरुला के चारों तरफ जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है, बट ब्लास्टुला के चारों तरफ नहीं है जोना पेलुसिडा, रप्चर हो गई और ब्लास्टुला में कैविटी प्रेजेंट है। अब ये सारा होते होते डेट इज 7th डे, 4th डे पे मोरुला एंटर कर गया, 7th डे तक ब्लास्टुला बन गया। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। हाँ बच्चे, मैंने इम्प्लांटेशन कब बताया था? हाउ मेनी डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन? इट इज 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे ब्लास्टुला से डेवलपमेंट शुरू हुआ, एम्ब्रियो बना, फीटस बना। क्या हम ये कहेंगे ब्लास्टुला या एम्ब्रियो इज हैंगिंग फ्रॉम वॉल ऑफ यूट्रस? नो, it is not hanging from the wall of uterus. It is found embedded in wall of uterus. ये हैंग नहीं करता है, यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है इसको सब तरफ से कवर कर लेती है इम्प्लांटेशन के बाद। इम्प्लांटेशन, और जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ इसमें कोरियोनिक विलाई का बनना शुरू हो गया, मीन्स प्लेसेंटा फॉर्मेशन शुरू हुआ और सबसे पहले हार्मोन HCG रिलीज हुआ जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, एंड दिस इज टेस्टेड इन प्रेगनेंसी टेस्ट। HCG नॉन प्रेग्नेंट में बनता ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो यूरिन में टेस्ट किया जाता है दैट इज HCG। सबसे पहले HCG बनना शुरू हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब यहाँ आ गया क्वेश्चन, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन। कैपेसिटेशन हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कैपेसिटेशन इज स्पर्म्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन? नो, स्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन? यस। सो कैपेसिटेशन इज preparation of sperm for fertilization. Next question, during formation of zygote different components are contributed from sperm and ovum. Which of the following statement about contribution are true? Sperms contributed half of cytoplasm? No बच्चे, sperms में तो negligible cytoplasm होता ही नहीं है, करीब करीब negligible ही हम कहेंगे। बोथ स्पर्म्स एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट हैप्लॉइड न्यूक्लियस? यस, ये तो कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओवम? यस, क्योंकि स्पर्म के पास तो होता ही नहीं है। बोथ स्पर्म एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल? नो, सेंट्रियोल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म। Sperm contribute centriole. Proximal centriole is contributed to zygote. तो बचे अब हमारे कौन से करेक्ट हुए? B and C. तो centriole is contributed by sperm or ova? It is contributed by sperm. Cytoplasm is contributed by ova. Next, the second maturation division of mammalian ovum occurs in the Graafian follicle? No. Shortly after ovulation, before ovum makes entry? No. Until after ovum has been penetrated by sperm. ठीक है, until after ovum has been penetrated, until the nucleus of sperm has fused with that of ovum? नहीं बचे, meiosis 2 complete हुई after entry of sperm. That restart the cycle, that is cycle start हुआ, मेटाफेज आगे कंटिन्यू की, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरुला इज करेक्ट? इट हैज़ मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर DNA? साइटोप्लाज्म तो बना ही नहीं, फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस है, रॉन्ग। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव्ड zygote बट मच मोर DNA, राइट?
क्योंकि जाइगोट में जो डीएनए कंटेंट है उससे डीएनए कंटेंट 8 to 16 टाइम्स ज़्यादा मोरूला में। नेक्स्ट, इट हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए, नो। इट हैज़ मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी, नो। AIPMT 2011 क्वेश्चन, राइट। अब आ जाता है आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज। अब बच्चे, ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज अगर कैविटी प्रेजेंट है मीन्स इट इज ब्लास्टोसील इज प्रेजेंट, तो इट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला भी हम कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है तो हम ब्लास्टोसिस्ट प्रेफर कर देते हैं। अब इसमें ये जो बाहर वाली सेल्स हैं ये बनाती हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो मेनली कोरियोनिक विलाई बनाती हैं, कोरियोनिक विलाई जो कि प्लेसेंटा बना रही हैं, जिसकी हेल्प से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इससे ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। ठीक है, ये वाली सेल्स जो हैं दे आर फॉर्मिंग इनर सेल मास, और पूरा का पूरा एम्ब्रियो, जितना भी एम्ब्रियो है दैट इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एम्ब्रियो प्रॉपर नहीं बना रही है, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय इनर सेल मास जो आगे एपिब्लास्ट सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, वही सारा का सारा एम्ब्रियो बना रही है। ट्रोफोब्लास्ट सेल एम्ब्रियो का कोई पार्ट नहीं बनाते। तो बच्चे अगर ये ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं बनता, ये कहाँ बनता है? यूट्रस में। तो आंसर इज ब्लास्टोसिस्ट यूटराइन वॉल, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तक तो मोरूला स्टेज ही प्रेजेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टुला बन गया, गैस्ट्रुला बन गया, 3 जर्म लेयर्स बन गई। विच इज फर्स्ट जर्म लेयर फॉर्म्ड? इट इज एंडोडर्म, then ectoderm, then lastly mesoderm is formed. अब इन 3 germ layers से different organs बने। अब सबसे पहले in human beings after first 1 month of pregnancy heart is formed. After 1 month means we can say that 4 weeks. ठीक है, 4 weeks हमने डिस्कस किया। 4 weeks में ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहले हार्ट बन गया। Then by the end of 2nd month of pregnancy limbs and digits are formed. 2nd month of pregnancy means how many weeks? 2nd month of pregnancy limbs and digits are formed means 8 weeks. 8 weeks पे limbs and digits are formed. फिर by the end of first trimester, तो पूरी प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स हम फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड 3 मंथ्स, थर्ड मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स या हम कह सकते हैं 3 मंथ्स। मेजर ऑर्गन सिस्टम, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म। अब बच्चे, जहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म हुआ, sex of fetus can be identified by ultrasound imaging. सोनोग्राफी से एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम आइडेंटिफाई करके सेक्स ऑफ फीटस आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ 3rd month मीन्स इन 4th month. Then first movement of fetus and hair on head during 5th month. 5th month में हम कहते हैं दैट इज़ अबाउट 20 वीक्स के करीब हम हेयर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर 24 वीक्स या हमने कह दिया 6 months. 6 months. Body is covered with fine hair, eyelids separate, eyelashes are formed, and 9 months gestation period, 280 days, baby is delivered or born, ready for delivery. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ये तो हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट प्लेसेंटा।
Placenta is connection, morphological, anatomical, physiological, mechanical connection between mother and fetus. अब बच्चे अगर हम fetus डिस्कस कर रहे हैं, fetus में यहाँ हमने कहा umbilical cord, this is fetal part of placenta. ये fetus, umbilical cord, fetal part of placenta, and here this is maternal part of placenta. ये मदर का पार्ट है, ये फीटस का पार्ट है, ये है umbilical cord. तो अगर आएगा what is the connection between fetus and placenta, answer is umbilical cord. And what is connection between fetus and mother, तो हमने कह दिया that is placenta, जिसके बहुत सारे functions हैं. Placenta, temporary, mechanical, physiological connection, nutrition, respiration, excretion, hormone synthesis. Placenta is acting as barrier for many pathogens. बहुत सारे pathogens placenta से पास नहीं हो सकते. किसी को याद है कौन से diseases हैं जो transplacental हैं? Yes, AIDS, hepatitis B, syphilis bacteria, they can pass through placenta. But most of the pathogen, they cannot pass through placenta. Placenta nutrient supply कर रहा है, endocrine function में भी है. It is producing HCG, जो मैंने अभी सबसे पहले डिस्कस किया था. जैसे ही placenta बना, HCG secrete हुआ, pregnancy हम डिटेक्ट कर सकते हैं. HPL एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब सिंथेसाइज होते हैं. अब अगर क्वेश्चन आता है आउट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, HCG, HPL, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिक्रीटेड ओनली बाय प्लेसेंटा? अब बच्चे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो ओवरी भी सिक्रीट कर रहे हैं ना, लेकिन HCL, HCG एंड HPL दे आर सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा. ठीक है. फिर रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा, लेकिन ये भी ओवरी भी सिक्रीट कर रही है. तो हम कहेंगे HCG, HPL जो है, और रिलैक्सिन वाइडनिंग ऑफ पेल्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब HCG, HPL, रिलैक्सिन दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के अलावा ये किसी और टाइम रिलीज़ नहीं होते. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन तो नॉन प्रेग्नेंट में भी रिलीज़ होते हैं ना, ये वाले सिर्फ प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं. इसके अलावा कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका लेवल भी इंक्रीज़ हो जाता है. अब बच्चे एक क्वेश्चन आ गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन प्रेग्नेंट फीमेल? Which of the following hormones are released in pregnant female? Options में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इसके अलावा PTH, थाइमोसिन एक्सेट्रा. अब बच्चे फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो कोई ऐसा थोड़ी कि उसमें अदर हार्मोन्स का सिक्रीशन बंद हो जाएगा. जो नॉन प्रेग्नेंट में थाइमोसिन, PTH या बहुत सारे दूसरे इंसुलिन, ग्लूकागन एक्सेट्रा वो तो सिक्रीट होते ही रहेंगे. हाँ, इन एडिशन टू दैट दे विल सिक्रीट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन. बाकी हार्मोन भी सिक्रीट तो होने बंद नहीं हो जाएंगे ना. सारे ही हार्मोन जो नॉन प्रेग्नेंट में वो तो सिक्रीट हो ही रहे हैं प्रेग्नेंट में भी. अब आ गया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. In human pregnancy, major organ system are formed in 12 weeks, right? In human pregnancy, major organ system are formed at the end of, नहीं बच्चे 12 weeks पे है, ये गलत हो गया. In human pregnancy, heart is formed in 1 month, right? Limbs and digits, 2nd month, correct, अभी हमने पढ़ा है. In human pregnancy, appearance of hair, 5th month, right? तो बच्चे हमारा सिर्फ इनकरेक्ट B है और सारे हमारे करेक्ट है. A, C, D and E only is the answer. Next, the placenta is known to produce number of hormones. ठीक है. HPL is produced only during pregnancy. Correct. HCG and relaxin are produced by women only during pregnancy.
Correct. Estrogen, progesterone, cortisol, prolactin increase several fold in maternal blood. Yes. Pregnancy maintain. Cortisol stress से overcome करने में help करता है. Relaxin causes relaxation of ligament of pubic symphysis. ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए. रिलैक्सिन पार्चुरेशन के टाइम पे प्यूबिक सिम्फाइसिस को, सर्विक्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है. Then parturition. Lastly, we will discuss about parturition. When we are talking about parturition, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है that fetal ejection reflex. Signal for parturition originate from fully formed fetus and placenta causing mild uterine contraction. Means कई बार आता है parturition is initiated by oxytocin. This statement is incorrect. Initiate किया fetal जो है that is initiated by fetus and placenta. जब contraction हुए अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन को स्टिमुलेटरी सिग्नल चलता है. लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फुल्ली फॉर्म फीटस एंड प्लेसेंटा, पहले यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज आएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना है इनिशिएशन इज बाय यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर ऑक्सीटोसिन और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते चले गए. ठीक है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्सेस टेक्स प्लेस. फिर बचे यहाँ पर जो हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन है. ऑक्सीटोसिन इज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ऑल्सो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. ठीक है, अब बचे रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. यस, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो टेक्स प्लेस. प्रोस्टाग्लैंडिन मायोमेट्रियम की मसल्स के लिए एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है. इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो. बचे थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों हाई हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन मोर एज compared to एस्ट्रोजन. ठीक है, तो हम कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन रेशियो इज मोर. लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन अब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल टेक्स प्लेस. तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रेशियो, दिस इज करेक्ट. ठीक है, पार्चुरेशन के टाइम पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट पूछा है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है. रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. बच्चे प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसिस का है, उसका तो पार्चुरेशन से डायरेक्टली कोई लिंक ही नहीं है. नेक्स्ट, ट्विंस हार्मोन. लास्ट क्वेश्चन. ट्विंस आर बोर्न एंड वन बॉय एंड अ गर्ल. अब बच्चे ट्विंस दो तरह से प्रोड्यूस होते हैं. एक तो ये है जो जाइगोट बना, जाइगोट से जो फर्स्ट 2 ब्लास्टोमेयर बनी. जब जाइगोट बना है एक ही ओवा एक ही स्पर्म. अगर ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएं तब तो ये कहलाते हैं मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस. इनका सेक्स भी सेम है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. इनको तो हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक. लेकिन अगर दो ओवा अलग अलग फर्टिलाइज हो जाएं अलग अलग स्पर्म से, अब इसको हम कहते हैं डाइजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विंस. इनका सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, उतने ही सिमिलैरिटी हैं जो एक सिबलिंग्स में, जो सिबलिंग्स के बीच में होती हैं. तो ये वाली अगर एक बॉय एक गर्ल है तो ये मोनोजाइगोटिक नहीं होंगे. मोनोजाइगोटिक में सेक्स सेम ही होता है. तो दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस? नो. दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस? यस. They were conceived through in vitro? Not necessarily. They have 75% of identical? No. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2. तो बच्चे यहाँ हमने
रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट डिस्कस किए, मेन फीचर्स आपको क्विकली रिवाइज करा दिए। एंड नाउ आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम्स। अच्छी तरह से पढ़ना, हेलिक्स की इस सीरीज़ को अच्छे से देखते रहना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट बच्चे, बेस्ट ऑफ लक।